So let us start. Producers equilibrium नजर आता है? Yes, sir. Producers equilibrium. What is that? First we will start. What is producers equilibrium? Yes, sir. First we must know what is equilibrium. Equilibrium. Equilibrium means when all forces are equal. When all forces are equal. है ना? जब सारे forces बराबर हैं तो हम कहते हैं it is equilibrium. It is a state of equilibrium. State of equilibrium is that state when all forces are equal. When all forces are equal. So, producer कब equilibrium पे आएगा? Now the question is when the producer will be at equilibrium. Producer कब equilibrium पे आएगा? यही है ना हमारा question. Basically we tries to know what is the part of this at what output level. At what output level this producer is at equilibrium. वो कौन सी output level है? The producer has n number of output levels, so Yes, many sir. options available. ठीक है? Yes, sir. हमें एक ही output level ढूंढना है. If a producer is producing along OX, this is the quantity producer at which the producer is incurring costs. Yes, He sir. or she is employing factors of production and produce any level of output. These are different output levels. But out of these unlimited output levels, there is only one output level at which producer is at equilibrium. First, we must know what is the motive of the producer. एक producer का motive क्या होता है? क्या उसका objective होता है? कि वो बहुत ज़्यादा profit कमाए. बहुत सारा profit कमाए. So the goal of the producer or objective of the producer is goal of producer or objective of the producer is profit. है ना? Profit. Yes, sir. So a producer is at equilibrium when he or she is getting maximum profit. When he or she is earning maximum profit from the sale of a given output level. वो output level हमें ढूंढना है जहां पे उसको maximum profit मिलता है. Maximum profit मिलता है. जो ये profit होता है वो किसके बराबर होता है? Profit किसके बराबर होता है? Selling price minus cost price. अच्छा, yes sir. कितने में चीज बेच दी और कितने में खरीदी. फॉर एक प्रोडक्ट मैंने 10 रुपया में लाया और इसको 12 रुपये में बेच दिया. सो दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस. 2 रुपया प्रॉफिट बन गया. दिस इज प्रॉफिट. हाँ, यस सर. तो यहाँ हम इकोनॉमिक्स में हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो होता है रेवेन्यू. वी कॉल इट. और जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है दैट इज कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. यस सर. कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. फायदा कितना मिला?
माइनस मुझे नुकसान कितना हो गया, तो प्रॉफिट उसको हम कहते हैं। सो जब ये मैक्सिमम होता है तो प्रोड्यूसर होता है एट इक्विलिब्रियम। सो मैक्सिमम प्रॉफिट मीन्स producer is equilibrium. Producer is in equilibrium. Producer is at equilibrium. This is producer is equilibrium. Producer is equilibrium. So this is maximum profit. This is maximum revenue minus cost. So when difference between revenue and cost is maximum, profits are maximum. हम यही कह सकते हैं ना। अगर यहाँ प्रॉफिट बराबर है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बराबर है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है बराबर मैक्सिमम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट is profit. You can write down it. So we can start the question. The equilibrium means when all forces are equal. The goal or objective of every producer is to earn profits, and the producer is at equilibrium when he or she is getting maximum profit. So producer's equilibrium is a state when producer is getting maximum profit. Profit is difference between revenue and cost. Profit is difference between revenue and cost. So when difference between revenue and cost is maximum, producer is at equilibrium. Or when profits are maximum, producer is at equilibrium. So a producer is at equilibrium when producer is getting maximum profits. Now the question is, where is the point? What is the level of output? What is the quantity of output when a producer is getting maximum profits? When a producer is getting maximum profits, at which level of output? किस output level पे एक producer maximum profit achieve करता है? Maximum profit achieve करता है किस output level? Before knowing that, we must understand first two things. Before knowing the producer's equilibrium or the level of output at which producer is at equilibrium, we must know two things. Two things. One is, we know revenue curves and we know cost curves also. हम जानते हैं ना revenue curves और cost curves भी। हमने marginal cost पढ़ा, average cost पढ़ा, total cost पढ़ा, इसी तरह total revenue पढ़ा, marginal revenue पढ़ा, average revenue पढ़ा। हम कहते हैं the total cost is the area. First, we must remember two things. The total cost is the area under cost curve or marginal cost curve. जो marginal cost curve के अंडर जो एरिया आता है वो है total cost. हमें जब तक में प्रॉफिट पता चले तब तक हम we are not able to know the producer's equilibrium. जब तक नहीं प्रॉफिट पता होता है इक्वल revenue minus cost. Revenue minus cost. So cost area हमें पता होना चाहिए. Geometrically we must prove cost कितना है geometrically. इसी तरह दूसरा है total revenue is the area under revenue curve. Total revenue is the area under revenue curve. Total revenue is the area under revenue curve. ठीक है? Yes, sir. Is the area under revenue curve.
ठीक है, हैं? अब हम Yes, स्टार्ट sir. करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम आएगा, हमारा प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम Maximum. आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये डायग्राम है, समझ आता है? समझो, आपको Yes, क्या sir. ये समझ आएगा, क्लियर समझ आएगा अगर थोड़ा ध्यान दोगे आप। ये है डायग्राम, इसका जो OX है वो दिखाता है लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड, क्योंकि हमें इसी Yes, डायग्राम sir. में रेवेन्यू में दिखाना है और कॉस्ट पे दिखाना है ना? Yes, sir. जब हम कॉस्ट दिखाते हैं वही मेजर द क्वांटिटी और लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। Produced. जब हम रेवेन्यू समझता है, रेवेन्यू पढ़ते हैं, तो उस वक्त हम लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड मेजर करते हैं, आउटपुट सोल्ड। Sold. OX दिखाएगा, OY दिखाएगा मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इसी तरह एवरेज रेवेन्यू, इसी तरह प्राइस भी वही होता है, एटसेट्रा। तो OY पे मैं कॉस्ट भी दिखाऊंगा और रेवेन्यू भी, कॉस्ट भी Revenue. और रेवेन्यू। Revenue. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. थंब रूल है, लॉ है, एक उसूल है इकोनॉमिक्स में कि प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम, producer will be at equilibrium at that output level when marginal cost is equal to marginal revenue। Yes, sir. ये सुना भी होगा आपने ट्यूशन में। Yes, sir. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर है Marginal revenue के. मार्जिनल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट must be rising, Yes, sir. must be rising। इसके Rising. बाद मार्जिनल कॉस्ट राइज होना चाहिए। Yes, sir. एक उसूल, सो देयर आर टू एलिजिबिलिटीज, दो चीजें ये फुलफिल करनी चाहिए। एक ये है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट Yes. और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट करनी चाहिए, द पॉइंट एट व्हिच दे Yes, इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम में, दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। अगर याद होगा मैंने सिखाया आपको, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होती है parallel to पैरेलल टू x-axis. एक्स एक्सिस, यही होती है एवरेज रेवेन्यू, यही होती है प्राइस Yes, लाइन। sir. प्राइस लाइन, एवरेज रेवेन्यू सब कुछ एक ही लाइन होती है, क्योंकि इसमें ये प्राइस दिया होता है हर एक फर्म के लिए। Yes, sir. जो मार्केट प्राइस है वो हर एक फर्म को एक्सेप्ट करना ही करना है। सो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसके अंडर जितना भी आएगा ये एरिया, वो होता है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। Yes, sir. दिस इज लेवल ऑफ आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये Yes, है sir. मार्जिनल कॉस्ट करो, अगर आपको याद होगा वो यू शेप्ड है Yes, ना? sir. यू शेप्ड है ना? Yes, sir. Yes. So this is Yes, marginal sir. cost code. This is marginal cost code. अब हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है एज पर रूल? When marginal cost is equal to marginal Yes, sir. revenue. Revenue. ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दो जगहों पे बराबर आता है, एक तो इस पॉइंट पे, एक तो इस Yes, sir. और दूसरा yes, sir. दो पॉइंट्स पे ये कट करते हैं। ठीक है, फॉर Yes, sir. एग्जांपल कीप इट एज पॉइंट, इसको हम बी रखेंगे
इसको और डी रखो, at point D and D the marginal cost is equal to marginal revenue. Revenue. बट दूसरी कंडीशन क्या बताती है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। यहाँ क्या होता है Rising. मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ मार्जिनल rise कॉस्ट हो इसके बाद फॉल होता है, इसके बाद लेकिन फिर राइज होता है ना, है फिर राइज होता है ना, कहाँ, कुछ नहीं होता। ये पॉइंट डी पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, Yes sir. rising, marginal cost is Falling. after this intersection, or when MC is equal to MR, after that marginal cost is falling. Look Yes, at sir. point B. At point B, Mhm. marginal cost is equal to marginal revenue and marginal cost is rising here. Rising. वही ना sir. हाँ. So this is the point where producer is at Equilibrium. at point. So this is the output level. कौन सी output level है, ये है, ये वाली output level. For example लिखो कुछ output level, इसको नाम लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पे नाम, for example OQ मैं दे दूंगा, Yes. OQ output level यहाँ नीचे, ये है ना OQ, Yes sir. है, so OQ is the output level at which producer is at Equilibrium. because marginal cost is equal to marginal revenue and marginal cost is rising. Rising. अब ये प्रूव करना है, हमें ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है, ये ऐसे ही दे दिया है उसूल या कुछ इसमें है, हकीकत है इसमें, लॉजिक देना है, लॉजिक देना है, कि देखना है कि क्या इसमें है कुछ है। चलो हम ये पॉइंट भी उठाएंगे, यहाँ क्या प्रॉफिट है, ये पॉइंट भी उठाएंगे, यहाँ प्रोड्यूसर को कितना प्रॉफिट आता है, और भी पॉइंट उठाएंगे बहुत से, जहां हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर कितना प्रॉफिट कमाता है, कहाँ कमाता है, कितना प्रॉफिट, अगर इतना आउटपुट लेवल वो प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, उसका प्रॉफिट कितना बनता है, अगर यहाँ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, अगर यहाँ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कितना बनता है। चलो मैं पहले उठाऊंगा आउटपुट पॉइंट बी, चलो लेट अस टेक पॉइंट बी, टेक पॉइंट बी, हम नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम, टेक पॉइंट बी व्हेन प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग OQ आउटपुट लेवल, प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग OQ level of output. Yes sir. Level of output. जब ये OQ आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करता है, उसका रेवेन्यू कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, बताओ। जब OQ आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, यहाँ पॉइंट बी पे बताइए कि कितना है कॉस्ट और कितना है रेवेन्यू। यस सर। बताओ कितना है रेवेन्यू, हमें पता है रेवेन्यू इज एरिया अंडर रेवेन्यू कर्व, एरिया अंडर, ये है रेवेन्यू कर्व, इसके अंडर कितना एरिया है वो है रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू में देखूंगा पहले OQ आउटपुट, अगर प्रोड्यूसर OQ प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्जांपल दीज आर 50 यूनिट्स और 50,000 यूनिट्स, इतना OQ, O से Q तक इतना एक क्वांटिटी है ना, तो इसमें रेवेन्यू कितना आ गया, ये इसने सेल किया, रेवेन्यू कितना आ गया, ये है प्राइस, OP इज द प्राइस, फॉर एग्जांपल OP इज द प्राइस। यस सर, आता है, यस OP है प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बताऊंगा, OP 10 रुपया है, OP is 10. OQ is, फॉर एग्जांपल OQ की भी कुछ फिगर दे दो कुछ फिगर, OQ के लिए कुछ फिगर रखो, कुछ भी 50, 50 रखो, चलो 50 रखेंगे। अब राबिया ने दुकान में माल डाला 50, इसने बेच दिया, 10 रुपया रेट है, तो कितना रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 50 into 10, यस सर, 50 into 10 वो हो गया 500,
Yes, sir. हाँ? अगर ज्योमेट्री में हम दिखाएंगे, ज्योमेट्री में दिखाते हैं ओह क्यू इंटू ओह पी, वो ये एरिया बन गया, ये एरिया बन गया, दिस इज होल एरिया बिकम्स रेवेन्यू, ओह क्यू बी पी, ओह क्यू बी पी, ये बन गया रेवेन्यू, ये सारा एरिया बन गया रेवेन्यू। Revenue. अब कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है, कॉस्ट इज एरिया अंडर कॉस्ट करो, कॉस्ट बनेगा ओ क्यू बी डी पी, ओ क्यू ये यहां से आएगा, यहाँ यहाँ एक पॉइंट और एक रखना है, Yes, sir. यहाँ ई रखेंगे, यहाँ पॉइंट ओ क्यू बी ई डी पी, ओ क्यू ई, ओ क्यू बी, ओ क्यू बी ई डी एंड पी, डी एंड, हाँ. ठीक है। अब बताओ मुझे प्रॉफिट कितना है, Yes. टोटल Profit हो रेवेन्यू गया, revenue माइनस minus टोटल कॉस्ट, Yes, sir. total revenue minus this minus this, this is हाँ. OQBP minus OQBEDP, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया BED, चलो ये इतना है भाई, है प्रॉफिट, ये इतना सारा है प्रॉफिट, ये सारा है, ये सारा है प्रॉफिट, ये है BED, हम कहते हैं कि ये प्रॉफिट इसमें मैक्सिमम है, इससे ज्यादा किसी आउटपुट लेवल पे हम हासिल नहीं कर सकते, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, द मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर उससे कम या ज्यादा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो वो इतना प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। चलो मैं एक पॉइंट और उठाऊंगा, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ई कॉस्ट इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, है ना, यहाँ कॉस्ट लोवेस्ट, yes, चलो मैं दिखाऊंगा यहाँ क्या है हमारा प्रॉफिट एट पॉइंट ई, देखिए एट पॉइंट ई, यहाँ क्या है, ये आउटपुट लेवल, आउटपुट लेवल लिखूंगा मैं OQ1 या OQ0, OQ0, ठीक है, ई यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जांपल B1, B1, मुझे बताओ, मुझे बताओ यहाँ टोटल रेवेन्यू कितना है एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, हाँ एट पॉइंट ई, एट पॉइंट या एट आउटपुट लेवल OQ0, एट आउटपुट लेवल OQ0 B1, नहीं OQ0 B1, बताओ टोटल रेवेन्यू क्या है, OQ0 B1 P, OQ0 B1 P, OQ0 B1 P। अच्छा टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है, OQ0 EDP, OQ0 EDP, OQ0 EDP, ये है ना कॉस्ट, ये इतना है कॉस्ट है, कॉस्ट करो के नीचे कितना है, ये है कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट। अब बताओ मुझे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बन गया OQ0 B1 P माइनस OQ0 EDP, तो प्रॉफिट हो गया, ये इतना है रेवेन्यू, इतना है कॉस्ट, प्रॉफिट बन गया DED1 या B1DE, B1DE। अब बताओ ये प्रॉफिट ज्यादा है
या ये सारा ज्यादा है, ये सारा का सारा। हाँ, जब ये ओह क्यों आउट ज्यादा, यस सर, हाँ, करता है तो ये सारा का ये पार्ट भी और ये पार्ट भी। अब ये हाँ, अगर यस सर, 2-0 ही प्रोड्यूस करेगा तो इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, तो हाँ उसी, प्रॉफिट नुकसान होगा इसको, इतना प्रॉफिट इसको छोड़ना है। अगर किसी भी पॉइंट पे जाएगा आप output level beyond accept this OQ, any output level except OQ, यस सर, less profit to the producer. So only point where producer is at equilibrium is the point when marginal cost is equal to marginal revenue and marginal cost is rising. Marginal cost is rising. We can, I will give you the homework. अब आपको देखना है at point, for example at output level, point नहीं, at output level this, मैं OQ1 दे दूंगा आपको, यहाँ OQ1, यहाँ आउटपुट लेवल, इस यस सर, इतना ये है, ये मैं दे दूंगा, यहाँ ये कॉस्ट है, ये थोड़ा बढ़ाना है, कॉस्ट करो बढ़ाना है, यस सर, OQ1 पे देखना है। यहाँ आएगा प्रॉफिट इतना, बल्कि माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये घर में हाँ, यस सर, होमवर्क है कि यहाँ OQ1 पे देखना है आपको कितना है रेवेन्यू, कितना है कॉस्ट, फिर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कितना बने। इसी तरह पॉइंट डी पे भी देखना है, पॉइंट डी एट पॉइंट डी, यहाँ आउटपुट लेवल फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ लिखो OM आउटपुट लेवल, यहाँ OM आउटपुट लेवल, एट OM आउटपुट लेवल है आउटपुट, यस सर, तो यहाँ देखिए आप कितना आएगा रेवेन्यू, कितना आएगा प्रॉफिट। तो यू कैन फाइंड दिस इज द ओनली आउटपुट लेवल where profits are maximum, no wire, no output level accepted this, whether more than this or less than this will give less profit to the producer, अब कुछ इसके लिए assumptions है, इसके लिए कुछ assumptions हम लिखेंगे, assumptions, हाँ assumptions, ये हो गया क्लियर? assumptions है, assumption क्या क्या है इसके लिए? assumptions, the producer's behavior is rational, assumptions है। नंबर 1 है the producer's behavior is rational, producer's behavior is rational, producer's behavior do not change easily, producer's behavior do not change easily, that is producer is consistent, कंसिस्टेंट हो गया, रैशनल हो गया, जिसकी अकल पूरी काम करती है, जो पागल नहीं है, जो इंसान नहीं है, जो मतलब इसराफ नहीं करता है, ज्यादा पैसे ऐसे ही खर्च नहीं करता है, या उतना वो माइजर भी नहीं है, उसको हम कंजूस कहते हैं, वो कंजूस भी नहीं है। assumption हम लिखते हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर डू नॉट चेंज इजीली, उसका बिहेवियर जल्दी चेंज नहीं होता है, कंसिस्टेंसी है उसमें। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। थर्ड, देयर आर ओनली 2 factors of production, that is labor and capital. There are only 2 factors of production, that is labor and capital. Only 2 factors of production, that is labor and capital. These are the assumptions of producer's equilibrium.
तो ये है ऑल अबाउट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वेरी इजी टॉपिक जो समझने के काबिल है, समझने के लायक है, तो मजेदार टॉपिक है। तो मुझे Yes, उम्मीद sir. है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने समझा होगा है पूरी तरह, Yes, sir. how to understand it geometrically, how to prove it by giving logic based on reality है। Yes, sir. चलो हो गया, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह उठाएंगे हम मार्केट। थैंक यू वेरी मच है। Okay, sir. ओके, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।